Assalamu alaikum. So this is the basic notion lectures playlist, and today I will record the first lecture. This is about the limit superior and limit inferior of a sequence of sets. Okay, and so let's see what is the limit superior and limit inferior of a sequence of set, and how the elements in limit superior and limit inferior looks like. So first of all, limit superior. So I will take let, it's a sequence of set. First of all, look at, it's not the sequence of number, the sequence of sets. So I will take let ek for k is greater than and equal to 1 be a countable collection of sets. Of sets in R or in any set. And okay, I will take of sets, then the limit superior limit superior of this collection, of this countable collection of this sequence EKs is defined as limit sup of k and limit sup of k, and this is exactly equal to the sup of k, limit sup of k ek. So this is exactly equal to the intersection of n is equal to 1 to plus infinity, and the union for k is equal to n to plus infinity. Okay, ek. And similarly, the limit inferior and the limit superior is, and the limit inferior is defined as the limit infimum of EKs for k is okay greater than and equal to 1 is equal to, so this is the intersection over union, that is the limit superior, and this is the union over intersection. So union for n is equal to 1 to plus infinity and intersection for k is equal to n to plus infinity ek. ठीक है? So this is the formal definitions for limits of limit superior and limit inferior of a countable collections of a set. So whenever you have a sequence of a set, you always has its limit superior and limit inferior. ठीक है? लिमिट एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, ये बात की बात है, लेकिन लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर एग्जिस्ट करती है. And limit superior is the intersection over union, countable intersection over countable union, and this is the countable union over countable intersection. So इसको so let's see कि first of all ये ज़हन में रखें, these are two sets. So countable union और countable intersection, so it's a set. First of all ये ज़हन में रखें, ये sets हैं, so it's a set and this is again a set. So question is how the elements in this sets looks like. कि इस अगर मैं limit superior में से कोई element ले रही हूँ तो इस एलिमेंट की नेचर क्या होगी, लिमिट इंफीरियर में से अगर मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ तो इस एलिमेंट की नेचर क्या होगी और इसका रिलेशंस क्या होगा इस सीक्वेंस ऑफ सेट्स के साथ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिमिट सुपीरियर. अगर मैं लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशंस देखूं so I will say that a point x, I always have a countable collection. ठीक है, मेरे पास एक countable collection है for k is greater than and equal to 1, और इसकी अगर लिमिट सुपीरियर से अगर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ, लेट्स से अगर x बिलोंग कर रहा है, that is in the limit sup of k ek. Okay,
So this is exactly equal to, so this implies that your x belongs to the intersection over union, ठीक है? So for n is equal to 1 to plus infinity, and for k is equal to n to plus infinity, ek. So अगर x belong कर रहा, that is intersection over union, so we will see like that. So first of all, so this implies that your x belongs to union for k is equal to n to plus infinity, ठीक है, ek for all n. जहन में रखें for all n is greater than n equal to 1. जहन में रखें अगर आपका कोई भी पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट से बिलोंग करता है, ans, ठीक है, फॉर n, तो इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट जो है वो belongs in every n for all n, ठीक है. So this is the basic definition for the intersection. So if x belongs to intersection of this set, so it's mean x belongs to this, and for all n is greater than n equal to 1. अब यहाँ पे आपका क्या है कि x belongs to k is equal to n to plus infinity. So this implies that, so when a point belongs to the union, it's mean the point belongs to in at least one members of this collection. Okay. So if x belongs to the union, so this implies x belongs to for ek, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है for some k, for some k, और ये जो सारे केस हैं ये किस पे रन कर रहे हैं, k is greater than n equal to n, और यहाँ पे आपका ये जो है वो for all n is greater than n equal to 1. और अगर इस चीज को मैं सेट थ्योरेटिक फॉर्म में लिखूं तो I will say that the limit sup of k ek is basically consisting of all those points such that what happens, such that x belongs to n. Let me just, okay, such that for all n is greater than or equal to 1, okay, there exist mean at least one. So this is for some, ठीक है, there exists a k is greater than or equal to n such that your x belongs to this en. So इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास, okay, I will write it in more I mean, so what does that mean? It's mean that this point actually appears infinitely often in the sequence. Okay, so let me just explain it. So for example, if you have a sequence like that, E1, E2, E3, and so on, and here you have say EK and EK plus 1, and so on, and so it's a sequence. So for all n, where I choose an n, for example, my n is k. Let's see, this k is, for example, this is your ek, this is your E1000, okay, E1001 and so on, ठीक है. So what does that mean? इसका मतलब ये है, for all n, I choose any n, for example, my n is 1000, okay. So n is 1000, so for this n, there exists a k that is greater than or equal to this 1000 such that your x must belongs to this ek. So कहने का मतलब ये है कि इस 1000 के बाद जो आपका सेट का पूरा पार्ट होगा, इसमें से ये जो 1000, 1000, 2 एंड सो ऑन, सो इसमें जो पूरी की पूरी आपकी सीक्वेंस की जो रिमेनिंग पार्ट है, इन्फिनिट पार्ट, उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा कि आपका x जो है वो इस एक एलिमेंट से बिलोंग करेगा, ज्यादा से ज्यादा किसी में भी. सो आप अगर फर्ज कीजिए n जो है वो मिलियंस ले रहे हैं, सो आफ्टर दैट मिलियन
यानी आपका ई की जो कलेक्शन है वो ई फर्स्ट मिलियन सेट्स छोड़ने के बाद जो आपके रिमेनिंग पार्ट होगा सीक्वेंस का, उसमें किसी एक एलिमेंट में किसी एक सेट में ये पॉइंट जो है ये पड़ा होगा। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि x अपीयर्स इन दिस सीक्वेंस इनफाइनाइटली ऑफन। ओके, मैं फॉर ऑल n कोई भी n लूंगी, उस n से ई n से आगे कोई भी n लूंगी, और इस ई n से आगे जितने भी सेट्स पड़े हुए हैं, जैसे ई एन प्लस वन, ई एन प्लस टू, ई एन प्लस थ्री, ई एन प्लस के एंड सो ऑन, इनमें कोई एक आपको ऐसा कैंडिडेट जरूर मिल जाएगा जो कि उस सेट उस पॉइंट को कंटेन करेगा। ठीक है, सो दैट इज सो दिस इज द वे we can imagine the point that lives in the limit superior of ek. ठीक है, so I will say that a point belongs to the limit superior if it appears infinitely often in the sequence. So एक simple सी इसकी एक definition ये है कि limit superior of En. So limit superior of Ek, so K is basically equal to the X such that your X belongs to En for infinitely many N. Okay, सो ये बेसिकली आपका है कि फाइनाइट हो सकता है आपका पॉइंट जो है वो फर्स्ट टाइम E1 में पड़ा हो, उसके बाद वो E10 में पड़ा हो, इसके बाद E1000 में पड़ा हो, इसके बाद E10000 में पड़ा हो, बट ये है कि पॉइंट्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आगे इनफाइनाइटली ऑफन रिपीट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर। सो इससे पहले कि मैं लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन सिमिलर है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसमें आपका इंट्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन बताऊं, इट्स बेटर टू एक्सप्लेन द लिमिट सुपीरियर विद सम एग्जांपल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो आई विल टेक अ सीक्वेंस ऑफ सेट लेट En, और यही एग्जांपल जो है मैं आपको लिमिट इंफीरियर के केस में भी एक्सप्लेन करूंगी। इसी एग्जांपल्स में मैं लिमिट इंफीरियर लूंगी। सो आई विल टेक अ सीक्वेंस, सो एग्जांपल्स ऑफ लिमिट। एग्जांपल आपकी क्या है? अगर मैं En ले रही हूँ, En is a sequence of set, so this is something like, for example, in R, so this is 0 and 1 over n plus 1. ठीक है, such that if your n is even, so I will write here if n is even. ठीक है, और आपके पास जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि -1 over n and this is 0 if your n is odd. ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि अगर मैं देखूं, अगर आपका फर्ज करे E1 है, तो E1 जो है वो आपका क्या होगा? इट्स एन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स में अगर मैं देखूं -1 over 1, सो दिस इज -2 and 0। ठीक है, अगर मैं देखूं E2 जो है वो किस शेप में होगा, तो E2 अगर आप देखें तो 0 1 over बिकॉज E2 1 over 2 plus 1, सो दिस इज 3/2, और 3/2 जो होता है वो आपका 1.5 होता है, सो दिस इज 0 and 1.5। ठीक है, अगर मैं देखूं E3 जो होगी उसकी शेप कैसी होगी आपकी? -1 over 3, सो दिस इज 3 -4/3, सो -4/3 जो है वो आपको क्या देगा? -4/3 आई थिंक -1.3333, -1.33 and 33 so on and 0। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं E4 देखूं, तो E4 की शेप क्या हो जाएगी? 0 + 1 over 4 + 1 is 5/4 and 1 + 5/4 is 0 and 1.25। इसी तरह से मैं एक और बनाती हूँ E5। अगर मैं देखूं, सो E5 की जो शेप होगी वो आपकी क्या होगी? दैट इज समथिंग लाइक दैट। 5 यहाँ पे -1 -6/5, सो -6/5 आपको आई थिंक देगी -1.2 एंड 0। और E6 अगर आप देखें, तो E6 जो है वो आपको देगा 7/6, और 7/6 आपको देता है 0
एंड 1.167। सो अगर आप देखें तो ये एक तरह से ये वाला जो पार्ट है, ये नंबर सिस्टम में, अगर मैं नंबर सिस्टम्स पे देखूं, ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये अगर आपका 0 है, ये आपका -1 है, और ये आपका सॉरी 1 है, और ये आपका -1, ठीक है। अगर आप देखें तो जितने भी ऑड सेट्स हैं वो 0 की लेफ्ट साइड पे पड़े हुए हैं, जितने भी ऑड सेट्स हैं, ये देखिए E1 है, -2 एंड 0। सो वो ऑड सेट्स जो होते हैं सारे के सारे ऑड सेट्स, वो सारे यहाँ पड़े हुए हैं, और जितने भी इवन सेट्स हैं वो 0 की राइट साइड पे पड़े हुए हैं, ठीक है। और एक और बात भी इसमें है, अगर आप गौर से देखें तो इवन सेट्स जो हैं, ये बेसिकली अगर आप देखें 0, ये 1.5, इसका कहीं हाफ होगा, दैट इज 3/2। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सीक्वेंस है, चूंकि 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 1 जो है, ये इज द सबसेट ऑफ ईच ईएन, दैट इज इवन सेट। एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो इस सीक्वेंस को अगर आप देखें तो E2 जो है वो सुपर सेट है E4 का, इवन में E4 जो है सुपर सेट होगा E6 का, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड सो ऑन। और ये जो सारे के सारे सीक्वेंस होती है, इनकी जो कन्वर्जेंस होती है, ये इनकी इंटरसेक्शंस की तरफ होती है, दैट इज n इज इक्वल टू n आपका इवन है, ठीक है, n इज इवन। सो इस केस में जो सारे के सारे ई एन्स होंगे, इनका जो इंटरसेक्शन है वो 0 एंड 1 होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो सब में 0 1 जो है उसका सबसेट होगा, ठीक है। और इसी तरह से जो लिमिट है, ये बेसिकली आपकी लिमिट होती है एक तरह से। इसी तरह से अगर आप ओड्स को देखते हैं, ओड सेट्स को, तो E1 जो है वो सुपर सेट है E3 का, E3 इज द सुपर सेट ऑफ E5, एंड दिस इज द सुपर सेट ऑफ एंड सो ऑन। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो इंटरसेक्शंस ऑफ En है वो n इज ऑड, सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू -1 एंड 0, ठीक है। और लेकिन जो आपका सीक्वेंस है वो किस तरह से है, सीक्वेंस मूव कर रहा है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर लाइन में मैं देखूं, ये मैं लाइन यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन, ठीक है। सो दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। और जितने भी ऑड सेट्स हैं, ये आपका E5 है, E3 है, E5 है, E1 है, E7 है, ये सारे के सारे 0 और -1 को कंटेन करते हैं। सो -1 एंड 0 जो है वो सबसेट है फॉर ऑल ENs वेयर n इज ऑड, ठीक है। और इसी तरह से जो आपका 0 और 1 है, दैट इज द सबसेट ऑफ En वेयर n इज इवन, ठीक है। सो लिमिट सुपीरियर इसकी क्या होगी, ये ध्यान में रखें, लिमिट सुपीरियर बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स दैट appears infinitely often in the sequence, जो कि सीक्वेंस में infinitely many times वो रिपीट हो रही, ठीक है। अब फर्ज कीजिए अगर मैं यहां से कोई पॉइंट ले रही हूँ इस साइड से, तो यहां से मैं कोई भी n पकड़ लूं, क्योंकि जब आपने लिमिट इंफीरियर की सुपीरियर की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें क्या था कि x फॉर ऑल n is greater than n equal to 1, there exists a k, and this k is greater than n equal to 1, such that your x belongs to this ek, ठीक है। सो मैं कोई भी n पिक कर लूं, फर्ज करें मैं E5 पिक कर रही हूं, और मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे लोकेट कर रहा है, दैट इज योर से पॉइंट x जो है मेरा 0 1 में लोकेट कर रहा है। और आप कोई भी n पकड़ लें, तो n अगर आप कोई भी लेंगे, यहाँ तो ये इवन होगा या ऑड होगा। फर्ज करें आपका n ऑड है, ऑड मीन फर्ज करें लेट्स सी आई टेक E5। सो E5 के बाद E5 में तो ये पॉइंट अपियर नहीं हो रहा, क्योंकि पॉइंट जो है वो 0 1 में है। लेकिन E5 के इमीडिएटली आफ्टर E6 है एक ऐसा सेट जिसमें ये पॉइंट जो है वो अपियर हो रहा है। ना सिर्फ E6 में अपियर हो रहा है बल्कि E8 में भी अपियर हो रहा है, और E5 के बाद जितने भी सेट्स इवन इंडिसेस के साथ असाइन होंगे उन सब में ये अपियर होगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि 0 1 के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लिमिट सुपीरियर में जा रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर मैं देखूं -1 से 0 में अगर मैं कोई भी पॉइंट पिक करती हूँ, से यहाँ पे जो मैं पॉइंट पिक कर रही हूँ वो y है। सो y जो है वो यहाँ पे लिव कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई भी n पिक कर रही हूँ, फर्ज करें अगर तो वो n ओड है,
तो इसका मतलब ये है कि उस जैसे आपका फर्ज करें एन जो है वो ओड है, E7 है, तो E7 में तो ये पॉइंट होगा क्योंकि हर ओड सबसेट में ये सेट पड़ा होता है, हर सॉरी नॉट ओड सबसेट, हर वो सेट जो ऑड इंडिसेस के साथ अटैच है उसमें ये उसका ये सेट सबसेट है, ठीक है। सो E7 में तो y ऑटोमेटिकली पड़ा होगा, लेकिन अगर E7 में नहीं होगा तो आप ये देखेंगे, आपका फर्ज कीजिए n जो है वो 7 है, सो n अगर आपका 7 है और E7 में तो ये डेफिनेटली y पड़ा होगा, लेकिन अगर आप फर्ज करें कि n जो है वो आपका कोई इवन नंबर है, से E6 है, तो E6 में तो ये y नहीं पड़ा हुआ, लेकिन E6 के इमीडिएटली आफ्टर E7 जो है, बिकॉज फॉर ऑल n देयर एग्जिस्ट अ केस सच दैट k इज ग्रेटर देन n, सो E6 के इमीडिएटली आफ्टर E7 ऐसा पड़ा हुआ है जिसमें ये y पड़ा हुआ है, ना सिर्फ E7 पड़ा हुआ है बल्कि E9 भी है, E11 भी है, E13 भी है, सो जितने भी ऑड इंडिसेस वाले सेट्स हैं उन सब में y पड़ा हुआ है। सो देयर एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं होता देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, देयर एग्जिस्ट means at least one k appears with this condition, और एट मोस्ट आपके इनफाइनाइट अपेयर्स हो सके। सो इसका मतलब ये है कि -1 0 भी लिमिट सुपीरियर में चला जाएगा। सो व्हाट इज द लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस? सो लिमिट सुप ऑफ n en, सो यहाँ पे मैंने n ले लिया, सो दिस इज इक्वल टू -1 एंड अगर आप देखें इस सेट का क्या, -1 0 भी पड़ा हुआ है, यूनियन 0 और 1 भी पड़ा हुआ है, और ये जो सेट है आपका ये किसके इक्वल है, दैट इज -1 एंड 1 so this is equal to -1 and 1, so this set is the limit superior of this sequence, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट इंफीरियर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, थैंक यू। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एग्जांपल से आपकी लिमिट सुपीरियर जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, थैंक यू। ओ सॉरी, लिमिट इंफीरियर।